So welcome you all. This is Akshay again, your physics teacher. Last lecture we have discussed about projectile motion theory. Okay, लास्ट दोनों भी लेक्चर जो हुए मोशन इन प्लेन के, उसमें जो थ्योरी हमने डिस्कस कर दिया. From that, if you can remember only 30 to 40% also, that is enough. Okay, from this lecture onwards, it will be a turning point for learning the motion in plane, because we are taking solved examples in this lecture. So if you are able to do these solved examples, and if you can remember those that theory in those previous lectures, it doesn't matter. Okay, just try to focus on these solved examples I'm going to take here today. Okay, so let's move to the first question. So ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. देखो JEE में या कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते. ये क्वेश्चंस क्यों ले रहे हैं हम? ये जो शुरुआत वाला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये ले रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड होनी चाहिए, उसके बाद थोड़े हायर लेवल के प्रॉब्लम्स लेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, a body is projected with a velocity 30 meters per second at an angle 60 degree with horizontal. Find maximum height, time of flight and range of the projectile. अभी इस प्रॉब्लम के लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं. मैक्सिमम हाइट इज गिवन एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. करेक्ट. द टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन एज 2u साइन थीटा बाय g. द रेंज इज गिवन एज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g. ओके, ये फॉर्मूला याद रखो, थोड़े आसान है याद रखना क्योंकि इसमें u थीटा और g इतना ही है, तो ये कांस्टेंट रहता है. किसी प्रोजेक्शन वेलोसिटी और प्रोजेक्शन एंगल के लिए ये सब क्या रहता है? कांस्टेंट. आप एक बार उसको फेंक दोगे तो ये फिक्स है, यही आना है. इफ़ यू चेंज द एंगल्स देन दिस विल चेंज, और इफ़ यू चेंज द इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी दिस विल चेंज. ओके, तो 30 से फेंका है तो 30 स्क्वायर u मतलब 30 होगा. अभी ये थीटा 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल दिया है. यहाँ पे जो एंगल लेंगे हम, इट वी विल टेक इट विथ हॉरिजॉन्टल. ध्यान रखना. मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे दिया होता, एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल. अगर ये 30 डिग्री विथ वर्टिकल होता, मान लो ऐसे, तो विथ हॉरिजॉन्टल कितना होता? 60 डिग्री. तो हम विथ हॉरिजॉन्टल वाला ही एंगल लेंगे इफ यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूलाज और दिस फॉर्मूला. ओके, सो अभी साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 कितना होता है? √3/2 और उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10 पकड़ लो, अप्रोक्सीमेशन. जब तक दिया नहीं है कुछ ऐसे ही पकड़ लो. तो इट विल बी 900 इंटू 3/4 अपॉन 20. इसको पॉइंट में वगैरह ले सकते हो आगे, लेकिन मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा. व्हाई आई एम राइटिंग मीटर हियर? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम हाइट विच इज़ मेजर्ड इन मीटर्स. नाउ सेकेंड, टू u is 30 and sin theta is 60 degree, so sin theta is √3/2. so these two gets cancel, is 30, sorry, upon 10, my mistake. 10 gets cancelled, it is 3√3 seconds. Okay, so 3 into 1.7 seconds means nearly equal to 5 seconds. Okay, 2.5 seconds to go upward and 2.5 seconds to come downwards. Now the range is u square means 30 square, that is 900, into sine 2 theta. Now it gets little complicated. Maybe you have learned allied angles. Okay, if you are not, don't worry, just put a star here. When we meet in classroom I will teach you. Okay, maybe in trigonometry functions it is covered. Now what will happen? Sine of 2 theta is here, it is not theta, it is 2 theta. 2 theta means double angle, so it will become sine 120 degrees upon everything is same. Now we need to find sine 120. How to find it? I can write it as sine 90 plus 30, isn't it? Okay,
otherwise just skip this. I'm not sure if allied angles is covered to you, covered. So sine 2 theta, I expand this. Sine theta is 2 sine theta cos theta. So if they are talking about sine 2 theta, theta is what, 60 degree. So I put 2 into sine 60 into cos 60. So 2 into sine 60 is root 3 by 2 and cos 60 is 1 by 2. So 2 gets cancelled, it is root 3 by 2. Okay, so this is what, root 3 by 2. So 900 into root 3 by 2 upon 10. So this gets cancelled, this 2, it becomes 45. So 45 root 3 meters. At a distance of 45 root 3 meters, it will land from its initial position, and the point where it lands, the distance between those initial and final point, we call it as range. Okay, so just this problem was all about substituting these values and solving them to the end, that's all. But these kind of questions are not asked, at least for now they are not asking this kind of questions in board examinations, or they can ask this kind of questions. But if we want to crack JEE or NEET, we must get to some higher level. Okay, so I'll take next question. So in the next question, we need to find, means a diagram is given to you. Okay, there are three projectiles A, B, C. Those have been thrown in this way, so they follow this kind of trajectory. Okay, individually. So we need to tick any correct answer. Okay, so what is UA? It means that the initial velocity or projection velocity for A. UB means projection velocity for B. UC means projection velocity for C. Now tell me what is correct. Just try it, otherwise I'll start here. देखो, इसको सॉल्व करने का बहुत, ये देख के बता सकते हो कि ऑब्वियसली सी की वेलोसिटी बी से ज़्यादा है, बी की ए से ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी बना के दिया है। मतलब इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आता है, ये आता है। तो देखो, इसको देखना कैसे है, इसको स्टडी कर दे। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इस आंसर के लिए नहीं लिया है, इसको स्टडी कर दे। तीनों की हाइट, तीनों की जो मैक्सिमम हाइट है वो सेम है, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट प्रोजेक्टाइल ए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल ए, इसके अगर वेलोसिटी यू ए है तो इसकी दो वेलोसिटीज होगी, यू ए कॉस थीटा एंड दिस विल बी यू ए साइन थीटा, या फिर सिंपली यू ए इन एक्स डायरेक्शन एंड यू ए इन वाई डायरेक्शन, इजंट इट। तो इसमें ये मैक्सिमम हाइट कवर कौन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर सबकी मैक्सिमम हाइट सेम है तो इसका मतलब ये है कि यू ए वाई इज इक्वल टू यू बी वाई इज इक्वल टू यू सी वाई। समझ में आ रहा है, करेक्ट है। ये भले कितने ही आगे जाए, we are talking about vertical motion only. In vertical motion they have covered equal heights, that's why vertical velocities, I'm talking about only vertical velocities, they must be same. But if I'm talking about these horizontal ranges, this has covered a farther range, so it's horizontal. Who is covering horizontal range? This ux. So this will be greater for C, then for B, then for A. So U C or UAX is lesser than UBX is lesser than UCX. Okay, if these are same, we can use this condition to prove this. समझ में आ रहा है। देखो, अगर मान लो UA का ऐसे होता 2 मीटर्स पर सेकेंड वर्टिकल, 3 मीटर्स पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल, बी का ऐसे होता 2 मीटर्स पर सेकेंड वर्टिकल, 4 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल, और सी का ऐसे होता 2 मीटर्स पर सेकेंड वर्टिकल और 6 मीटर्स पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल। तो ऑब्वियसली इसका ऐसे कुछ होता, इसका थोड़ा सा ऐसे कुछ होता, 4 है मतलब और 6 है मतलब बहुत ज़्यादा, इसका ऐसा कुछ होता। समझ में आ रहा है। तो
किसका रिजल्टेंट ज़्यादा होगा, इसका। ऑब्वियसली सबकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो वो यूज़ नहीं करेंगे, वी विल सी द अनदर कंपोनेंट इफ दिस वर्टिकल इज सेम. So this answer is correct. A very popular question. A body is projected with the velocity u at an angle of projection theta. What must be the value of theta for getting the maximum height, maximum possible height and maximum range? So what they're saying, just imagine this. आपके पास एक कैनन है, तोप है आपके पास, ठीक है, और उसे क्या करना है, आपको बॉम्ब फेंकना है ऐसे, और आपको बताया गया है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही फेंक सकते हो. तो अगर आपको बहुत दूर तक फेंकना है, मतलब मैक्सिमम रेंज, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, और बहुत ऊंचा फेंकना है तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए फॉर सेम प्रोजेक्शन वेलोसिटी. ये क्वेश्चन पूछा. तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है. इसके बाद में जो भी आंसर आएगा आप उसको स्टार करके उसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखोगे. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट इज गिवन एज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. यहाँ पे ध्यान दो, ये u कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है. सो h डिपेंड्स ऑन साइन स्क्वायर थीटा. तो जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे h बढ़ेगा. और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एक्यूट एंगल्स, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसके बीच में साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1. और 1 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो एच मैक्स इज फॉर द पॉसिबल मैक्सिमम हाइट. अगर आपको चाहिए तो आपको थीटा कितना चाहिए, 90 डिग्री, विच इज़ वेरी डिजास्टर्स. क्योंकि अगर ऊपर फेंकोगे तो फिर से ऊपर ही अपने ऊपर गिरेगा. दैट्स अ जोक, बट ध्यान रखना, अगर मैक्सिमम पॉसिबल हाइट चाहिए तो हमें क्या चाहिए, वर्टिकल मोशन चाहिए. ठीक है, उसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चाहिए कि जो आगे जाके फेंके. ठीक है. सेकेंड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेंज, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. यहाँ पे u स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, g कॉन्स्टेंट है, सो द r डिपेंड्स ऑन साइन 2 थीटा. ठीक है. अब ये 2 थीटा को मैं अल्फा बोलता हूँ. 2 थीटा, लेट्स 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा. लेट्स से 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा. सो रेंज डिपेंड्स ऑन साइन अल्फा. वॉट एवर दिस एंगल, साइन अल्फा, साइन थीटा, कोई भी हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसके बीच में, 90 डिग्री. ओके, 1. सो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री. करेक्ट है ना, क्योंकि साइन 91 होता है. जैसे जैसे ऊपर जाओगे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है और मैक्सिमम को होती है 90 डिग्री को. सो इफ अल्फा इज 90 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा विल बी 45 डिग्री. ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. वी गेट मैक्सिमम रेंज एट 45 डिग्रीज. समझ लेते हैं एक बार. ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ओके, मान लो ये मैंने 45 डिग्री का एंगल निकाला, तो इससे जब फेंकूंगा तो ऐसे जाके गिरेगा. ये मैक्सिमम रेंज है मेरी, दिस इज माय मैक्सिमम रेंज, सेम प्रोजेक्शन वेलोसिटी के लिए u. अगर मैं इसी को थोड़ा सा आगे लेके, इधर लेके, मतलब लेस देन ग्रेटर देन 45 लिया मैंने, 60 डिग्री, तो ये जाके ऐसे गिरेगा. मैक्सिमम हाइट तो होगी इसकी, इससे ज़्यादा हाइट होगी इसकी, लेकिन रेंज कम होगी. इसको थोड़ा सा नीचे से फेंका मैंने 30 डिग्री, तो ये ऐसे जाके गिरेगा. समझ में आ रहा है. तो दोनों केसेस में 45 के नीचे आओ या ऊपर जाओ, रेंज विल बी लेसर देन द मैक्सिमम रेंज. गेटिंग इट. एंड ऑल्सो देयर इज अनदर नोट कि इफ range is same for you can say complementary angles. Means if I'm throwing it with 30 degree and if I'm getting a range of let's say 80 meters, and now if I'm throwing with the same speed, I'm talking about the same speed, not the different speed.
if I'm throwing with 10 meters per second, now I'm throwing with the same speed 10 meters per second but at different angle 60 degree. Now 60 plus 30 we get 90 degree. What are the complementary angles? The addition should be 90 degree. So 30 plus 60 is equal to 90. If I'm throwing either with 30 or with 60 degree, the range will be same. Getting it? For same प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ध्यान रखना, इसको 10 से फेंका, इसको 20 से फेंका, ये मतलब नहीं है. सेम प्रोजेक्शन वेलोसिटी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज इज ऑलवेज सेम. ओके, let's take the next question. This question was asked in AIEEE, मीन्स JEE के पहले जो एग्ज़ाम होती थी उसको AIEEE कहते थे. उसमें पूछा गया था कि डिराइव्ड रिलेशन, मीन्स एक्चुअली ऐसा नहीं पूछा था, क्वेश्चन MCQ वाला क्वेश्चन था, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट में कर दिया है कि डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज. इसके बीच में एक रिलेशन होती है जिसको मैं बॉक्स करके लिखूँगा, जिसको आप याद रखोगे. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इसको याद ही रखना है, क्योंकि आप इसको फिर से डिराइव कर सकते हो आसानी से. ठीक है, और अभी जो भी मैं प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, ये बस आपको समझ में आने बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ये अलग बात है. कभी कभी बच्चों को एक कॉम्प्लेक्स होता है कि सर तो सॉल्व एग्जाम्पल्स ले रहे हैं क्लास में, लेकिन मुझे सॉल्व नहीं करने आ रहे. डोंट वरी, किसी को नहीं आएंगे इतनी जल्दी. मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आपकी ग्रास्पिंग कैसे है. ठीक है, कोई भी टफ प्रॉब्लम लूँगा यहाँ पे मैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप अगर समझ में आया, अगले दिन आपको सॉल्व नहीं करने आ रहा है, डोंट वरी. ठीक है, आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है सॉल्व करने के लिए, डोंट वरी, नो इशू. आपको बस समझ में आना चाहिए कि किया कैसे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ. क्योंकि जो IITians होते हैं ना, कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, उनकी सबसे खास बात ये होती है कि वो बच्चे पहले समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. तो जो अच्छे से समझता है वही अच्छे से अप्लाई कर सकता है. ठीक है, तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो. आप 6 महीने बाद इसको सॉल्व करो ना, नो इशू. अभी तो स्टार्ट हो, अभी 10th से 11th में आए हो, तो अभी नहीं सॉल्व कर सकते इसको इतनी जल्दी. ठीक है, लेकिन देखो तो है क्या पढ़ना है हमें अगले 2 साल के लिए. ओके, तो फिलोसफी ज़्यादा नहीं. डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज. तो वी नो दैट द हाइट इज गिवन एज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये कभी कभी ऐसे ही हो जाता है. ओके, एंड रेंज इज गिवन एज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. ठीक है, तो ये दोनों के फॉर्मूले थोड़ा ऐसे वैसे हैं, तो हम देख लेते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है. यहाँ पे देखो u कॉमन है, g कॉमन है, तो हम इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं. क्या करते हैं हम इसको h को r से डिवाइड करते हैं. सो h अपॉन r वुड बी, इसको डिवाइड करने का पड़ेगा इससे, करेक्ट है ना. h को r से किया मतलब इसको इससे करना, डिवाइड करना पड़ेगा. सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g को डिवाइड करना पड़ेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g से, इजंट इट. तो यहाँ पे u स्क्वायर चला जाएगा, g चला जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा. ओके, सो नाउ साइन स्क्वायर थीटा, ये जो 2 नीचे आया मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ डाउनवर्ड्स. सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इन ब्रैकेट में साइन 2 थीटा को एक्सपांड कर देता हूँ एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, तो यहाँ पे ये साइन थीटा एक साइन थीटा को मार देगा. ओके, सो h अपॉन r वुड बी, ये 2 इंटू 2 इज 4, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा. देख लो एक बार. ठीक है, सो इट विल बी 4h इज इक्वल टू r टेन थीटा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज. इसमें u नहीं है, कुछ नहीं है, बस व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. करेक्ट. एंड इफ
आर इज मैक्सिमम, आर मैक्सिमम को रेंज मैक्सिमम कौन होता है जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, करेक्ट. दिस tan 45 will be 1, so range will be 4h. I'm talking about maximum range. तो ये हमेशा होता है जब आप किसी भी प्रोजेक्शन वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंकते हो 45 डिग्री पे, तो जो हाइट होती है, ये जो रेंज होती है, इट इज़ ऑलवेज 4 टाइम्स ऑफ द हाइट. गेटिंग इट. ये जो है ये और ये, या फिर दिस ओनली, आप बॉक्स करके कहीं पे नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट. और एक क्वेश्चन ले लेते हैं. जो देखो ये क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं पूछे गए थे, तो यार टेंशन मत लेना आ रहा है नहीं आ रहा है, बस ध्यान देना, इसको ग्रास्प कर लेना. अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन खुद को सॉल्व करने अभी नहीं आ रहे, डोंट वरी. 3 महीने बाद भी नहीं आ रहे, डोंट वरी, आ जाएगा धीरे धीरे. जब प्रैक्टिस करने लगोगे ये बहुत ही सिंपल से लगने लगेंगे, बहुत सिंपल. ठीक है. क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो शुरुआत में डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन से, उसके बाद वो इतनी जल्दी और इतने फास्ट इतने से सेक्शन में कर लेते हैं, सर हो गया आंसर. ठीक है, तो डरो मत. ओके. A body is projected with a velocity 40 meters per second at an angle 60 degree with horizontal. Calculate its position after 1 second. We have been asked to find out the position. अभी अगर आपको याद होगा मोशन इन प्लेन का पहला लेक्चर या फिर सेकेंड लेक्चर, उसमें ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ऐसे, ये टाइम के साथ बदलता है. यहाँ पे एक्स और वाई, टाइम जैसे जैसे बदलेगा इसके कोऑर्डिनेट्स भी बदलते जाएंगे. तो मान लो टाइम t इज इक्वल टू 1 पे ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे था, तो हमें क्या ढूंढना है, इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं. मान लो x और y इसके कोऑर्डिनेट्स है, तो हमारी पोजीशन मिल गई, एक्स आई प्लस वाई जी, दैट्स ऑल. ये ढूंढना है हमें. ठीक है. तो यहाँ पे आते आते इसने जो ये x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर किया होगा, ये किसने कवर किया होगा, u cos थीटा ने. और यहाँ पे आते आते इसने जो ये डिस्टेंस कवर किया होगा किसने किया होगा, u sin थीटा ने. वेयर u इज 40 मीटर्स पर सेकेंड जो दिया है हमें, एंड थीटा इज 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. ओके. तो हमें ये ढूंढना है कि x और y ढूंढना है आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. अभी ये जो x डिस्टेंस कवर करना था, इसको कवर करने के लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंपली हमें क्या करना है, स्पीड इनटू टाइम करना है, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन. और ओके हमें पता है ना x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला. तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए एक्सेलरेशन तो कुछ नहीं है यहाँ पे दिया. ठीक है, प्रोजेक्टाइल में होता ही नहीं है. तो x विल बी स्पीड इनटू टाइम ओनली. सो स्पीड क्या है हॉरिजॉन्टल के लिए, u cos थीटा, एंड टाइम इज 1 सेकेंड. सो x विल बी u इज 40, cos 60 इज हाफ, थीटा कितना दिया है 60, तो हाफ, इट विल बी 20 मीटर्स. तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया 20 मीटर्स. नाउ वी नीड टू फाइंड y, बट हियर इज अ कैच. y को अगर कवर करना है तो एक्सेलरेशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. समझ में आ रहा है, क्लियर है. तो ये जो है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वर्टिकल में, उसमें जो u है ये वर्टिकल वाला u साइन थीटा. सो 40 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2. सो इट इज 20√3. u की वैल्यू वर्टिकल के लिए क्या मिली हमें, 20√3. सो दिस विल 20√3 इंटू टाइम कितना दिया है 1 प्लस हाफ, और g अभी डाउनवर्ड है इसलिए -10 इंटू t कितना है 1 का स्क्वायर इज 1. सो 20√3 ये माइनस बाहर लेके आओ, इट विल बी 5. तो सॉल्व करो थोड़ा सा. 20 इंटू √3 होता है 1.7 माइनस 5, दैट इज 34 माइनस 5 अप्रोक्सीमेटली. ओके. सो इट विल बी 29 इफ आई एम करेक्ट. सो हमें y कोऑर्डिनेट भी मिल गया 29 मीटर्स. तो हमें पोजीशन मिल गई पॉइंट की 20 और 29. तो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा
20i प्लस 29g। दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस इसको देख लो एक बार, हमने क्या किया है, एक्स को इंडिपेंडेंटली वाई को इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया। ये मेथड होती है, ये मैं बोल रहा था शुरुआत से कि ऐसे वाले क्वेश्चंस हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ना कि फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस हो जो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन लिखी थी वैसे वाले क्वेश्चंस हमें ज़्यादा करने, ताकि ये क्वेश्चंस क्या करते हैं, हमारा एप्टीट्यूड बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इट इज़ स्केरी बिकॉज इट इज़ न्यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लो। बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री। जो लास्ट क्वेश्चन था सेम कंडीशंस है, बट वी आर नॉट बीन आस्क्ड टू फाइंड द पोजीशन, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। सब सेम है, बस हमें क्या ढूंढनी है, वेलोसिटी। तो जो हमने इस क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में भी वही करना है। यहाँ पे देख लो, पोजीशन के बारे में सीख लिया कि पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स देख के हमने कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ अलग अलग मोशन को स्टडी करके किया। जैसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन में 1D मोशन में हम देखते थे, वैसे इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके लिया। अभी इसको देखो, ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट पी पे होगा मान लो, ओके, एक्स और वाई पे आफ्टर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, व्हेन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैसे है, टेंजेंशियल ऐसे जा रहा है इस पॉइंट के लिए, ये फाइनल वेलोसिटी होगी ऐसे, और जिससे हमने फेंका था इसको, ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा। यहाँ पे दिया है 60 डिग्री और ये दिया है 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो एट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इट विल बी लाइक दिस, और मे बी इट विल बी लाइक दिस, हमें पता नहीं है, और मे इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, और मे बी इट हैज़ रीच समवेयर, कुछ भी हो सकता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे, जस्ट अज्यूम। तो जब यहाँ पे होगी ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, तो इसके भी दो कंपाउंड्स होंगे, v x और ये v y, और यहाँ से जो हमने फेंका था u को, तो u x और ये u y, तो u x का क्या बन गया, v x आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 1, और u y का क्या बन गया, v y। वेलोसिटी चेंज होगी ना, लेकिन u x का v x सेम ही है ये दोनों। वाई, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सेम रहेगी। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल मोशन, the velocity will always be changing. Why? Because there is a constant acceleration called acceleration due to gravity. ये बात समझ लो, ठीक है। तो इसको भी हम दो इंडिपेंडेंट मोशन से देखते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल वाला जो हमने यहाँ पे x लेके स्टार्ट किया था, सिमिलरली मैं यहाँ पे x डायरेक्शन में स्टार्ट करता हूँ। x डायरेक्शन में v हमें क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। सो वी एक्स विल बी यू एक्स, दैट इज यू कॉस थीटा, एंड u is 40, cos theta means cos 60, cos 60 is half, so horizontal velocity will remain same 20 meters per second। इनिशियल जो थी वही फाइनल रहेगी। आप पहले इनिशियल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे 40 इंटू कॉस 60 इज हाफ, सो इट इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वर्टिकल इज 40 इंटू साइन 60, दैट इज √3/2, सो दिस विल बी 20√3 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमें मिल गए। तो हॉरिजॉन्टल जो थी वही फाइनल है, ओके, फाइनल हॉरिजॉन्टल। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वाई एक्सिस, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, लेट्स से, ओके। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी हमें वी वाई ढूंढनी है, ये इसको ढूंढने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कौन सी चाहिए, वर्टिकल वाली, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ वाई डायरेक्शन। सो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20√3, ओके, प्लस जी, वेलोसिटी ऊपर है जी नीचे है, तो जी की वैल्यू क्या आएगी, -10, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, सो इट विल बी 20√3 - 10, got it? So 20√3 - 10 will be
24 मीटर्स पर सेकेंड। देख लो कैसे आया, 20 इंटू √3 इज 1.7, सो दिस विल बी 34 माइनस 10 दैट इज 24। गॉट इट। तो अभी हमें फाइनल वेलोसिटी देखनी है, ये क्या होती है, वी एक्स इंटू आई कैप हॉरिजॉन्टल वाला ले लिया, फिर वी वाई इंटू जे कैप वर्टिकल वाला ले लिया, दोनों की वेक्टर एडिशन कर दी तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 20i प्लस 24j। करेक्ट है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको वेलोसिटी पूछी है कि फाइनल वेलोसिटी की कितने मीटर्स पर सेकेंड आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 20 स्क्वायर प्लस 20। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं ना, तो इसका मैग्नीट्यूड जो भी आएगा उसको आगे मीटर पर सेकेंड लगा दो, आंसर बोल दो। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इन दोनों क्वेश्चंस को स्टार करके रखो। ये क्वेश्चंस आपको बहुत, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ अज्यूम मत करो कि आपको अगले दिन आने चाहिए, ये डोंट वरी, इतनी जल्दी नहीं आएंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस। लेकिन मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यार कि 2 साल के बाद हमें ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, और JEE अगर क्रैक करनी है तो ऐसा लॉजिक चाहिए हमारे पास। ओके।